Hello everyone. Welcome to the next lecture on the Gram-Smith process. In this lecture, I will explain you the 15 plus numerical examples. Myself, Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now, what we have discussed up to the last lectures, you can see my playlist Numerical Linear Algebra, and you can see the last lecture was on Gram-Smith process and its interpretations. Fine. So in this lecture, we have explained the complete theory and some basic concepts about the Gram-Smith process. The fundamental of the Gram-Smith process is we have to construct the orthonormal basis. अगर आपको ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के बारे में कुछ भी नहीं मालूम तो आप क्या करिए, ये प्रीवियस लेक्चर देखिए, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. दिस इज द फंडामेंटल लेक्चर्स. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. Now, the biggest question arises is how we can construct the orthonormal basis or orthonormal vectors. So the orthonormal basis is depend upon the nature of the VI's. What kind of the nature we have? Either these vectors are my orthogonal or these vectors are not orthogonal. अगर ये orthogonal है तो आप orthonormal vector बड़ा जल्दी निकाल सकते हो. Otherwise you can construct the non-orthogonal. What is the meaning of the orthogonal? वो मैंने इस लेक्चर में एक्सप्लेन करा हुआ आपको. What is the orthogonal? अगर मैं आपको कहूं कि VI set of the vectors is said to be orthogonal if Vi dot Vj is my 0 and the given set of the vector is said to be orthonormal if it satisfied my two properties. The first property is Vi dot Vj is my 0 for all I is not equal to j, and second is norm of Vi must be 1. Fine. Or in other words, you can see what is the first property says. The first property say it is my orthogonal and the second property says it is my unit norm. So इसका मतलब orthonormal किसको कहेंगे? अगर तो वो given set of the vectors आपके orthogonal है और unit norm है, then we can say it's orthonormal. अगर आपने प्रूफ कर दिया कि ये orthogonal है तो आप इसके orthonormal vectors डायरेक्टली निकाल सकते हो. आप डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हो? इस V1 को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो. फाइन. कॉमा V2 को इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो आप. सिमिलरली लास्ट वन इज Vn, इसको आप इसकी लेंथ से डिवाइड कर दो. सो दीज वेक्टर्स जो भी मिलेंगे आपको वी कॉल एज द ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर्स. बट अगर ये ऑर्थोगोनल नहीं है तो आप इसकी लेंथ से डिवाइड नहीं कर सकते. दैट मीन्स आपको ग्राम स्मिथ प्रोसेस का यूज करना होगा. देन उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. क्लियर? ग्राम स्मिथ प्रोसेस कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको क्विकली से रिकॉल करवा देता हूं. देखो, मैं एक बार क्विकली से समझिए इस क्वेश्चन पॉइंट को. आपका टारगेट है ये गिवन सेट ऑफ द वेक्टर्स आपके पास है. आपका टारगेट है कि इसको ऑर्थोनॉर्मल बनाना. फाइन. अब क्योंकि अगर तो ये वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये वेक्टर आपके ऑर्थोगोनल नहीं है तो क्या करें, हम एक अंदर एक अलग से वेक्टर बना देते हैं, नए वेक्टर, लेट्स से u1 से लेके un. और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये जो वेक्टर मेरे हैं वो ऑर्थोगोनल हैं. फाइन. अगर आपने ये ऑर्थोगोनल प्रूफ कर दिए तो क्या होगा, मैं इसको इसकी लेंथ से डिवाइड कर दूं तो फिर मेरे को ऑर्थोनॉर्मल वेक्टर मिल जाएंगे. तो आपका प्रोसेस यही है कि नॉन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स को ऑर्थोगोनल वेक्टर में कन्वर्ट करना, and that we can do by using the Gram-Smith process. Fine. The given set of vectors को आपको orthogonal vector बनाना है by using the Gram-Smith process, and then we can convert it into the orthonormal. The procedure of the Gram-Smith process is very simple. We can use the projection formula. Fine. The detail about the projection formula is given in the last lecture of the Gram-Smith process. तो आप एक बार last lecture जरूर सुनिएगा. ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा ग्राम स्मिथ प्रोसेस क्या है. तो व्हाट इज द U1? U1 आपका पहला नंबर ही हो गया, दैट इज A1. U2 इज A2 में से आप प्रोजेक्शन लीजिए वेक्टर A2 की ऑन द प्रीवियस U1. सिमिलरली U3 के लिए A3 की प्रोजेक्शन लीजिए U1 के साथ और U2 के साथ. प्रोजेक्शन ऑफ A3 लीजिए एक बार U1 के साथ और एक बार प्रोजेक्शन लीजिए A3 की U2 के साथ, एंड सो. ठीक है,
तो इस वैल्यू का आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर लो। U2 कितना हो गया आपका A2 प्रोजेक्शन ऑफ A2 ऑन U1 डिवाइडेड बाय U1 कॉमा U1 फाइन, और U1 तो आपका A1 ही है। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर? नॉर्म ऑफ द एक्स स्क्वायर इज x कॉमा x। तो इससे ये चीज क्या बन गई आपकी, क्या मैं इस डिनोमिनेटर को नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर लिख सकता हूं बाय यूजिंग द डेफिनेशन? फाइन, एंड सिमिलरली फॉर द A, क्लियर? और जो भी ये वेक्टर्स आपने बनाए U1 U2 UK, दीज आर ऑल आर माय ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। जैसे आपको ऑर्थोगोनल मिल गया, देन यू कैन फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बाय डिवाइडिंग इट्स लेंथ। ठीक है, अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। 15 प्लस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल सोल्व करेंगे इस लेक्चर में। यू मस्ट वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इजीली। Now before I start with the numerical example, I hope you can like and comment on this video as well. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको ग्राम स्मिथ प्रोसेस अप्लाई करना है, जब भी, सबसे पहले इस वेक्टर का नाम आप A1 A2 और A3, फाइन। तो सबसे पहला कंसेप्ट आपको ये चेक करना है कि क्या ये वेक्टर्स A1 A2 एंड A3 लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। फाइन, लीनियर इंडिपेंडेंट को चेक करने के लिए दो मेथड बताए थे मैंने। फर्स्ट मेथड क्या था, इसका आप डिटर्मिनेंट लिख लो, A1 की वैल्यू कॉलम वाइज लिख लो, 1 -1 1 1 0 1 1 1 2। अगर तो ये वैल्यू नॉन जीरो आ गई, देन दे आर माई Li। फाइन, सेकेंड मेथड क्या बताया था मैंने आपको, इसको C1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फर्स्ट वेक्टर को, सेकंड को आप C2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स आर माई कॉन्स्टेंट्स, और थर्ड को C3 से, इसको जीरो के इक्वल कर लो। इसको सॉल्व करो, अगर तो तीनों वैल्यू आपकी जीरो आ गई, देन वी कैन से दे आर Li। अगर किसी की वैल्यू जीरो नहीं आई, देन वी कॉल एज दी LD। मैं आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो नॉन जीरो आ जाएगा। फाइन, तो गिवन सेट ऑफ द वेक्टर्स आर Li। so A1 A2 A3 आर माई। देन बाय द ग्राम स्मिथ प्रोसेस आपके तीन वेक्टर हैं, तो आपका टारगेट है U1 U2 U3, तीन चीजों को निकालना। तो फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, मैं आपको यहां एक बार लिख के दिखा दे रहा हूं। U1 क्या होगा, पहला वेक्टर, U2 A2 से स्टार्ट करेंगे, A2 की प्रोजेक्शन आपको लेनी है प्रीवियस वेक्टर इज A1 के साथ, डिवाइडेड बाय U1 स्क्वायर इनटू U1। एंड सिमिलरली U3 की वैल्यू कैसे लोगे, A3 की प्रोजेक्शन दोनों के साथ, सो दैट मीन्स A3 कॉमा U1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U1 माइनस A3 की प्रोजेक्शन U2 के साथ डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U2। फाइन, रिमेंबर स्टूडेंट, ये अकेला ये वेक्टर है, ये लेंथ है, आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते आप। क्लियर, अब आप स्टार्ट करते हैं। तो U1 की वैल्यू कितनी होगी, A1 1 -1 1, और ये स्टैंडर्ड क्या दिया हुआ आपको, स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, इसका मतलब आपका x, y जो भी इनर प्रोडक्ट है वो क्या है, स्टैंडर्ड, दैट इज सम ऑफ, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। फाइन, तो लेट्स स्टार्ट विद द U2 A2 कितना आपका 1 0 1 माइनस A2 एंड U1, दिस इज A2, दिस द U1, दोनों की डॉट प्रोडक्ट लीजिए, 1 0 1 1 0 1 इज 2 1 0 1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U1, इसका स्क्वायर कर दो, 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू U1 1 -1 1। तो ये कितना आंसर हो गया, पहला कॉम्पोनेंट 1 -2 by 3, 0 माइनस माइनस प्लस 2 by 3, और थर्ड कॉम्पोनेंट में थर्ड वाला माइनस कर दो। फाइन, तो ये कितना आंसर हो गया, 1/3 2/3 1/3। फाइन, अब आप U3 लिखेंगे, U3 के क्या लिखोगे, A3। फाइन, A3 की वैल्यू लिख देते हैं पहले, A3 इज माई 1 1 2 माइनस A3 एंड U1, A3 तो आपका ये है, इसको U1 के साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए, कितना आएगा, 1 -1 प्लस ऑफ 2, दैट इज माई 2 डिवाइडेड बाय U1 स्क्वायर, इसका नॉर्म निकालिए, 1 1 एंड 1 3 इंटू U1 माइनस A3
A3 का U2, दिस इज माई U2, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लीजिए 1/3, 2/3, 2/3, दैट इज माई 5/3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U2, तो नॉर्म ऑफ U2 कितना हो जाएगा 1/9 प्लस 4/9, 1/9, so that number is my 6/9 into U2. U2 is my 1/3, 2/3, 1/3. फाइन, तो अब आप इसको कैंसिल कर दीजिए। सो कितना आंसर हो गया? आप फर्स्ट कंपोनेंट, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2/3 और इधर से फर्स्ट कंपोनेंट कितना आएगा -5/6, कॉमा सेकेंड कंपोनेंट 1, इसका सेकेंड कंपोनेंट प्लस 2/3 और इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज -5/3. Similarly for the third component 2, then it's a -2/3 and it will be -5/6. तो आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, 6 will be the LCM, so that is a 6 minus 4 minus 5, so that is a 9 minus 3/6, that will be minus half. Similarly you can find the second one and the third. Fine, so therefore U1, U2, U3 are my orthogonal vectors. आप अपना आंसर एग्जाम में चेक कैसे कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाले वो सही है कि नहीं? आप क्या करो, U1 को U2 के साथ, U1 को U3 के साथ एंड U2 को U3 के साथ, मतलब U1 U2, U1 U3 एंड U2, ये सबके आंसर आपके 0 आने चाहिए। अगर ये सारे आंसर 0 आए हैं तो आपका आंसर सही है। लेट्स चेक, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करिए, 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1/3, 0 आ गया ना, तो ये फर्स्ट पार्ट तो सही हो गया। U1 और U3 -1/2 प्लस 0 प्लस 1/2, दैट इज 0, ये भी सेटिस्फाइड हो गया। U2 एंड U3 को करिए -1/6 प्लस 0 प्लस 1/6, दैट्स ट्रू। इसका मतलब ये तीनों आंसर आपके सही है। अब क्योंकि अब आपको ऑर्थोनॉर्मल मिल गया, वंस यू कैन गेट द ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोनॉर्मल कैसे बनाओगे आप? इसको नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं, दिस आर माय ऑर्थोनॉर्मल, कैन यू फाइंड द नॉर्म ऑफ U1? तो U1 का स्क्वायर कर दो, 1 + 1 + 1, दैट इज माय √3. नॉर्म ऑफ U2 इज √ ऑफ 1/9, 4/9, 1/9, so that is my 6/9, that is √6/3, and norm of U3 will be √ of 1/4 plus 0 plus 1/4, that is 1/√2. अब आप सारी वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो। व्हाट इज द U1? 1/√3 minus 1/√3 and 1/√3. फाइन, इसको U1 को डिवाइड करना है ना √3 से, और इसको करेंगे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी 1/√6, 2/√6 एंड 1/√6. सिमिलरली 3 को आप √2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर हो जाएगा। और इसको आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हो आप, √3/3 माइनस √3/3, अदरवाइज दैट इज अ फाइन आंसर. These are my orthonormal vectors. चलिए look at this one. Again, it's a Euclidean है, that is xi, yi. These are my inner product. Clearly say, अगर ये मेरा A1 है और A2 है, अब आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं लिख सकते. Clearly say A2 can never be written as k times of the A1. That means they are Li. नाउ अब आपके दो वेक्टर्स हैं, फाइन, सो आपको क्या निकालना है, U1 एंड U2. U1 इज माई A1, U2 विल बी A2, प्रोजेक्शन ऑफ A2 ऑन U1, प्रोजेक्शन ऑफ A2 ऑन U1. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. U1 is A1, A1 is my 1 1 0. U2 A2 minus A2, this is my A2 and U1, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, 2 + 1 + 0, that is my 3 divided by norm of U1,
स्केयर 1 + 1 + 0 इंटू u1। तो करिए सॉल्व, इसको कितना आ गया 2 - 3/2, 1 - 3/2, 1 - 0, so that will be 1/2 - 1/2 and 0। फाइन। सो आप दो ही आंसर आया है, तो आपको चेक कर, एग्जाम में चेक कैसे करोगे इसको, आपका u1 डॉट u2 0 आना चाहिए, एंड यू कैन सी दैट 1/2 - 1/2 + 0 which is 0 is equal to 0, hence u1 and u2 are my orthogonal bases। तो जैसे ऑर्थोगोनल हो गए तो आप ऑर्थोनॉर्मल में कैसे बना सकते हो, डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। कितना आएगा इसका लेंथ u1 का 1 + 1 + 0 which is √2। length of the u2 is 1/4 and 1, so that will be 3/2। अब आप इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे u1 की वैल्यू क्या है आपकी 110, इसको √2 से डिवाइड करेंगे 1/√2, 1/√2 एंड 0। u2 को आप √3 से डिवाइड करेंगे, so that is 1/2, this is √3 divided by √2 minus 1/2, √3 divided by √2, 1 divided by √3 and √2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, दैट विल बी माई 1/√6 minus 1/√6 and it is √2 divided by √3। These are my orthonormal bases। Look at the next one. Use the Gram-Smith process to construct the orthogonal basis। सिर्फ orthogonal निकालने को बोला है, orthonormal नहीं। फाइन। अब आपका इसमें बेसिस x, y क्या है, इंस्टेड ऑफ द xy यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है ना आपको f and g। दिस इज अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन, सो दैट इज माई इंटीग्रेशन a to b ऑफ f and g। अब यहाँ पे a कितना है आपका 0, b इज माई 1, तो आपकी डोमेन होगी 0 to 1 fx into gx। अब आपके तीन फंक्शन है f1 f2 f3, योर टारगेट इज टू फाइंड u1 u2 u3। फाइन। तो क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ द a1 यहाँ पे f1 है, दिस इज f2 माइनस प्रोजेक्शन ऑफ f2 ऑन u1 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u1। फाइन। यहाँ पे f3 प्रोजेक्शन ऑफ f3 ऑन u1 एंड u2, projection of f1 f3, you can write it as norm of u1 minus projection of f3 on u2, norm of u2 into u2। fine, so let's start with the first one। पहला तो u1 तो आपका f3 हो जाएगा, that is f1 is my 1। फाइन। अब यहाँ पे फिल करते हैं f2 is my x माइनस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, f2 is my x, u1 is my 1 into dx divided by norm of u1 norm of u1 square, बेसिकली मतलब u1 and u1। तो मैं इसको फिर से ये लिख सकता हूँ ना इसके अकॉर्डिंग, 0 to 1 u1 is 1 into 1, तो ये नीचे वैल्यू आ गया आपकी इंटीग्रेशन 0 to 0 1 into 1 into u1। तो ये कितना आ गया कैलकुलेशन करके, द न्यूमरेटर इज x square by 2। फाइन, इफ यू सब्सटीट्यूट 0 to 1 इट इज माई हाफ डिवाइडेड बाय 1 into 1, तो कितना आंसर हो गया x माइनस हाफ। क्लियर। नाउ वी कैन स्टार्ट विद u3। अब आपके पास u1 भी है, फाइन, u2 भी है आपके पास। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज f3 इज माई x square, so I can write as a x square minus integration from 0 to 1 f3 is my x square, what is a u1 is my 1 divided by norm of u1 square, वो हमने यही निकाला है, ये देखिए डिनोमिनेटर, that is my 1 into 1
माइनस f3 x square, u2 is my x minus half, divided by u2 is my x minus half square into x minus half. फाइन, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. x square, what is the integration of the x square is x cube by 3 from 0 to 1, that is my 1 over 3 over 1. What is the integration of, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं. So I can solve at this point. What is the integration of this component? अगर आप इसकी ब्रैकेट खोलोगे, that is my x cube minus x over 2. So that is x4 over 4 minus x square over 4 from 0 to 1. So that 1 fill करोगे तो 1 by 4 minus 1 by 4. So that is a 0. तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई 0. नीचे कुछ भी वैल्यू हो, that is whatever there, आंसर तो 0 ही हो जाएगा ना आपका. So आपका आंसर कितना हो गया, x square minus 1 over 3. Fine. It is x cube 1 by 4 x, कहाँ गलती हुई है, सॉरी, इट्स x square, so it is x square by 2. तो जैसे x square by 2 करोगे, इंटीग्रेशन इज x cube divided by 6, so it is 1 by 4 minus 1 by 6. तो ये 0 नहीं है आपका, so it is a 1 by 4 minus 1 over 6. डिनोमिनेटर में कितनी हो जाएगी इंटीग्रेशन, चाहे तो आप a minus b का होल स्क्वायर खोल लीजिए, अदरवाइज इंटीग्रेशन इज 3 by 3 from 0 to 1. So it is 1 over 8 24 minus 0 fill करोगे तो minus minus plus 1 over 24. That number is 2 over 24 x minus half. तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, 2 by 24, 2 by 24 is cancel out plus 1 over 2. That number is x square minus x plus 1 by 6. So you have the three vectors u1, u2 and u3 are my orthogonal bases. Again आप अपना आंसर चेक कर सकते हो एग्जामिनेशन में, आपका क्या होना चाहिए, u1 डॉट u2. तो u1 डॉट u2 मतलब u1 आंसर इज 1 इंटू u2 इज x माइनस हाफ, इसकी इंटीग्रेशन आपकी आनी चाहिए 0. सिमिलरली u1 और u3 में u1 इज 1, u3 ये आंसर है, यहाँ पे फिल करो, इंटीग्रेशन इसकी 0 आनी चाहिए. सिमिलरली फॉर u2 एंड u3. क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या बोला था इन्होंने, ओनली फॉर द ऑर्थोगोनल, ऑर्थो नॉर्मल नहीं पूछा, तो यू कैन स्किप एट दिस पॉइंट. Okay, use the Gram-Smith process, construct the orthonormal over the complex plane. So what is the norm of the complex plane is, inner product is x into y complex conjugate. तो मैं पहला पार्ट कर दे रहा हूं. The first part is a1 आपका फर्स्ट कंपोनेंट है, a2 आपका सेकंड कंपोनेंट है, and you can clearly say they are Li. क्यों, बिकॉज A2 को आप कभी भी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A1 में नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है. फाइन, तो ये कभी भी नहीं लिखा पाएगा, तो दीस आर Li. क्लियर. अब आपके दो वेक्टर्स हैं A1 एंड A2, तो आपका टारगेट क्या है, योर टारगेट इज टू फाइंड द टू वेक्टर्स U1 एंड U2 विच आर बेसिकली दी ऑर्थोगोनल वेक्टर्स. क्लियर. So let's start with the firstly u1. u1 आपका क्या होगा, a1, और u2 क्या होगा आपका, प्रोजेक्शन ऑफ a2 ऑन u1, प्रोजेक्शन ऑफ द u2 ऑन a1. फाइन, डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ u1 स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द a1? a1 इज 1 माइनस आयोटा 0 आयोटा. चलिए A2 में फिल करते हैं, 1 प्लस आयोटा 0 माइनस व्हाट इज द नॉर्म ऑफ, यहां निकाल लेते हैं A2 एंड U1. सो A2 की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस आयोटा, सॉरी A2 इज 1 प्लस आयोटा 0 डॉट प्रोडक्ट U1 इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो U1 मेरा ये है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेके लिख लो आप,
1 plus iota, 0 minus iota. Now you can take the dot product. What is a 1 into 1 plus iota? That is my 0 and 0. तो ये नंबर आपका हो गया 1 plus iota. Divided by norm of u1 square. Norm of u1 square means u1 into u1. Fine. तो पहला u1 क्या है आपका 1 माइनस आयोटा 0 और दूसरे को क्या करना है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख लो 1 प्लस आयोटा 0 माइनस आयोटा. तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके दैट इज माई a प्लस बी a माइनस बी 0 and minus iota square. Minus iota square is plus 1. That number is my 3 into u1. u1 is my 1 minus iota 0 iota. Is it okay? यहाँ पे कुछ और आ रहा है पर चेक कर ले. a2 and u1 कोई गलती हुई है. a2 is 1 plus iota 0 and u1 is इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. फाइन. सो दैट इज अ 1 प्लस आयोटा. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1. इसको करेंगे सॉल्व. दैट इज माई 2. सो 1 माइनस 2/3. सेकेंड कॉम्पोनेंट 1 प्लस आयोटा माइनस 0 and third component is 0 minus iota plus iota square divided by 3. So that is the answer is 1/3 1 plus iota and it is a minus 1 minus iota divided by 3 are the right answers. ठीक है. तो यहाँ पे ये 0 आ जाएगा. So that will be 1 plus नीचे भी गलत हो जाएगा. It is a हाँ divided by तो 3 is fine and you can solve it. Fine. Second part you can do it by own. यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई. It is a 1 plus iota. तो ये आपका आंसर चेंज हो जाए. Fine. You can check your answer again whether the u1 dot u2 is a 0 or not. Second part that you can do it by own. But यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल पूछा है. Fine. तो आप क्या करोगे इसकी लेंथ से डिवाइड कर दोगे. Can you find the length of the u1 which is रूट ऑफ इसका स्केयर कर दो 1 प्लस आयोटा का मैग्नीट्यूड लेना बेसिकली. व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दी. ठीक है. डॉट प्रोडक्ट इसके कंप्लीमेंट से 1 प्लस आयोटा 0 माइनस आयोटा. तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1 2 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज माई 3. सिमिलरली नॉर्म ऑफ u2. अब यहाँ ये नंबर गलत हो गया ना आपका. जो भी राइट आंसर आएगा उससे आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पे डिवाइड कर देना. मान लो अगर ये आपका करेक्ट आंसर है ऑल्दो इट्स अ रॉन्ग आंसर. फाइन. तो u1 की वैल्यू आपकी क्या थी. इसको आपको क्या करना है √3 से डिवाइड. ठीक है. 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय √3 0 डिवाइडेड बाय √3 आयोटा डिवाइडेड बाय √3. सिमिलरली फॉर द second part you can do it by own. Fine. And let me know in the comment box whether you are able to understand or not. Okay, next one is how you can define the Gram-Schmidt process on the matrix. Again, your target is to construct the orthonormal basis. तो मैं पहला पार्ट कर दे रहा हूं. Your target is A1 and A2 is there. Fine. दो ही वेक्टर है ना A1 A2. So your target is to find the U1 and U2. So A1 तो आपको मिल ही गया सीधा ही है. फाइन. अब सेकंड से स्टार्ट करते हैं. 2 4 -3 1 माइनस. अब ये ऊपर वाली वैल्यू निकालते हैं A2 एंड U1 बाय यूजिंग दिस कॉम्पोनेंट. ये आपको नॉर्म डिफाइन करा हुआ है. सॉरी ये इनर प्रोडक्ट डिफाइन करा हुआ है. A2 दिस इज माय A2 एंड दिस इज माय U1. तो A11 तो पहला कॉम्पोनेंट दैट इज A2 दैट इज माय 2. सो 5 into 2 B11 that is 1 plus 2 into A12 into B12 minus 1 plus 3 into A21 into B21 plus 5 into A and is my B22 is my 1. इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो यहाँ हो जाएगा. सिमिलरली व्हाट इज द नॉर्म ऑफ U1. इसको मैं U1 एंड U1 लिख सकता हूं ना. ठीक है. इस कंपोनेंट को तो U1 एंड U1 मींस इसी वाले पार्ट को इसी नंबर से. तो ये कितना हो गया 5 into
A11, बी भी यही हो गया आपका, प्लस 2 इंटू -1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 5, तो दैट विल बी 14 प्लस 10 24। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं अभी हम इंटू U1। फाइन, तो जैसे आप ये नंबर कैलकुलेट करोगे वो नंबर 45 आ जाएगा। सो देन तो कितना होगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 15 8। तो ये पहला नंबर क्या बन गया आपका 2, इसको दोबारा लिख लेते हैं 1 4, देन इट इज 15/8, 1 2 -1 1। हेंस तो ये पहला नंबर क्या होगा, मैट्रिक्स 2 माइनस 15/8, सेकेंड मैट्रिक्स -3, एंड देन इट्स माइनस माइनस प्लस 15/8, 4 माइनस 15/4, इसको करेंगे 15/4, देन 1 माइनस 15/8। नाउ इसकी कैलकुलेशन कर लोगे एलसीएम, इसे 16 माइनस 15, दैट्स 1/8, and so on are the right answer of the problem. And again, you can check your answer whether U1 and U2 is 0 or not. This is my U1 and this is my U2 by using the Gram-Smith process is 0 or not, और 0 आना चाहिए आपका। Similarly, second part you can do it by own. यहाँ पे A1, A2, A3 है, then your target is to find U1, U2 and U3. अब क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, ऑर्थोनॉर्मल पूछा था, तो हम क्या करेंगे, ऑर्थोगोनल मिल गया आपको, इसको डिवाइड कर देंगे इसके लेंथ से। तो क्या आएगी लेंथ ऑफ द U1 अंडर ऑफ, क्या लिख सकते हैं इसे हम, U1 लिख सकते हैं ना, तो U1 पे यही वाला कंसेप्ट यूज कर लो। अदरवाइज आप हर क्वेश्चन में ये कर सकते हो, ये देखिए यही तो लेंथ निकाली थी हमने U1 स्क्वायर, ये कितनी आई थी 24, तो U1 स्क्वायर हमने कितनी निकाली थी 24, तो U1 इज माई √24। सिमिलरली U2 के लिए क्या करोगे आप, इसको U2 और U2 मतलब यही वाली लाइन से आप सेम सॉल्व कर लो। सो 5 इंटू 1/8 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू A12 -9/8 -9/8 प्लस 3 इंटू A13 2/8 2/8 प्लस 5 इंटू 7/8 7/8। इसको सॉल्व कर लोगे अंडर रूट को, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू √106 डिवाइडेड बाय 8। अब आप इस U1 को √25 से डिवाइड कर दो, सो योर फर्स्ट मैट्रिक्स विल बी √24 -1 बाय √24, अदरवाइज बाहर लिख लो मैट्रिक्स के, फाइन। सो दैट्स ऑन योर, these are my orthonormal basis. नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज अ पोलिनोमियल बेस। मैं आपको हर कैटेगरी का बता रहा हूं, देखिए सब स्टार्टिंग में हमने करा है R³ से, जिसमें वेक्टर्स आपके कुछ इस तरह से थे, फिर हमने करा है जब आपके पास फंक्शन होगा F1 F2 के, फिर थर्ड कैटेगरी हमने करी है जब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, फिर हमने करा जब आपके पास मैट्रिक्स होगी, एंड नाउ वी विल डिस्कस व्हेन दे आर दी पॉलिनोमियल्स। क्लियर? अगेन आपको नॉर्म क्या डिफाइन करा हुआ है, दिस नेचर, ये क्या है, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई, एंड सो ऑन। फाइन, अगेन यहाँ दो पार्ट्स हैं, मैं कोई एक पार्ट करके दिखा दे रहा हूं आपको। लेट्स से फर्स्ट पार्ट P1 एंड P2 गिवन है आपको, तो आपको U1 एंड U2 ही निकालने हैं। सो P1 की वैल्यू फर्स्ट फिक्स कर देते हैं, फाइन। चलिए P2 पे सब्सटीट्यूशन करते हैं, 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, न्यूमरेटर इसकी वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, P2 एंड U1। फाइन, P2 मतलब ये चीज है और P1 मतलब ये चीज है। इसका नॉर्म बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन क्या होगा, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करो, प्लस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना आंसर हो गया, 2 + 2 4, 4 - 2 2, तो ये आपका आंसर हो गया 2। नीचे क्या लिखा हुआ है, U1 स्क्वायर मतलब U1 एंड U1,
तो दिस इज माई u1, इस u1 को u1 से ही करिए, कांस्टेंट आपका 1 है, दूसरा भी 1 हो गया, प्लस माइनस ऑफ 2 इंटू माइनस ऑफ 2 प्लस 2 एंड प्लस 2, तो 1 प्लस 4 दैट इज माई 9 इंटू u1। फाइन, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो। कांस्टेंट कितना हो गया आपका पास, दैट इज माई 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आया था आपका 2/9, इसकी ब्रैकेट खोल देता हूं, तो माइनस 2/9, देन माइनस माइनस प्लस 4/9x, एंड इट्स a minus 4/9 x cube। फाइन, तो कांस्टेंट को आप ले लो साथ में, 18 माइनस 2 16/9 माइनस x, it's a minus 5/9x, and it's a 9 and 13/9x square is the required u2। और आप चेक कर सकते हो ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, मैं एक करके दिखा दे रहा हूं आपके लिए। चलिए, बाय यूजिंग दिस नॉर्म, u1 कांस्टेंट को कांस्टेंट से करिए 16/9, कोफिशिएंट ऑफ x -2, इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 10/9, 2 and minus 13, 26/9, you can see 9 is LCM, 26 minus 26 is 0, yes, up to here your answer is correct। और यहाँ पे सिर्फ ऑर्थोगोनल ही पूछा है, ऑर्थोनॉर्मल नहीं पूछा, तो दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। सेकंड पार्ट, दैट यू कैन डू इट बाय ऑन। अगर यहाँ पे ऑर्थोनॉर्मल पूछ ले तो क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे u1 की लेंथ से, तो u1 की लेंथ निकाल देते हैं, क्या आएगी 100 के साथ आएगी ना, u1 को u1 के साथ ही करना है, तो दैट इज 1 इंटू 1 -2 इंटू -2 एंड 2 इंटू 2, तो कितना हो गया 4 + 4 + 1 9, 9/√9 is 3। सिमिलरली व्हाट इज द u2 के साथ u2 करेंगे, दैट इज 256 डिवाइडेड बाय 9, 25/9 and 169/9। So once you can solve them, you will get 5√26 divided by 9। So इस u1 को norm of u1 से डिवाइड कर दो, u2 को norm of u2 से डिवाइड कर दो, then you will get the orthonormal basis। सेकेंड पार्ट ये दैट यू कैन डू इट बाय ओन। आप कमेंट करके बताइए कि आप इजिली सॉल्व कर पाओगे इन क्वेश्चंस को। अगर नहीं कर पाओगे, लेट मी नो, आई कैन सॉल्व यू इन द माय नेक्स्ट वीडियो एज वेल। Look at this next question. Let pi is a plane in the R cube spanned by the two vectors. So clearly say these two vectors are my Li. Why? Because क्या आप x1 को k into x2 लिख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, बिकॉज यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 0 है, तो आप इसको लिख ही नहीं कर सकते, k तो मिलेगा ही नहीं आपको, इसका मतलब दिस इज माई Li। अब आपको क्या बोला है, ऑर्थोनॉर्मल निकालना है पाई के लिए, तो इसके अंदर दो ही तो एलिमेंट्स है ना, x1 x2, तो आपका टारगेट क्या है, ग्राम स्मिथ से u1 और u2 को फाइंड करना। क्लियर? तो कैसे निकाल देंगे, इट्स अगेन सिंपल, u1 आपका क्या है, x1 1 2 एंड 2, u2 को निकालेंगे। अच्छा, इनर प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, r3, सो एक्स वाई का क्या हो जाएगा, रियल है तो xi इंटू वाई है, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। चलिए u2 मतलब x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, -1 0 2, माइनस नॉर्म करेंगे इस x2 का u1 के साथ, दैट इज अ डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, -1, सेकेंड नंबर इज 0, थर्ड नंबर इज 4, डिवाइडेड बाय u1, इसी का नॉर्म, मतलब इसी को दो बार करेंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 2 एंड 2, तो देखो कितना आंसर हो गया, -1 0 2, ये 3 हो गया, ये 9, तो दैट इज 1/3 1 2 एंड 2, तो फर्स्ट से फर्स्ट पेयर माइनस कर दो, -4/3 -2/3 2 -2/3 6 -2 4 4/3। Fine, and again you can check your answer whether the dot product is 0 or not element wise, -4/3 -4/3 plus 8/3,
यस दिस इज ए 0, इसका मतलब यहां तक तो बिल्कुल सही है। और आपको आगे क्या पूछा है, ऑर्थोनॉर्मल पूछा है, तो इसकी लेंथ से आप इसको डिवाइड कर दो। तो नॉर्म ऑफ U1 कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 + 4 + 4, norm of U2 is 16 by 9, 4 by 9, 16 by 9, that is my 18 by 9, 36 by 9, that is a 2. Therefore, U1 divided by norm of U1, U2 divided by norm of U2 are my orthonormal bases. Second part क्या बोला इन्होंने, सेकंड पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या बोला है इन्होंने, एक्सटेंड करिए R3 पे ऊपर। ऑर्थोनॉर्मल तो बोला है लेकिन R3 पे ऊपर। यू कैन सी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द R3, R3 इज माई डायमेंशन ऑफ द R3 इज माई 3। इसका मतलब आपको 3 वेक्टर चाहिए, x1 x2 एंड x3। वी हैव द x1, वी हैव द x2, बट x3 कहां से लाओगे आप, x3 तो गिवन नहीं है ना। सो जब भी आपको कोई वेक्टर गिवन ना हो, you have to choose x3 in such a way such that x1 x2 and x3 are my li। कोई भी चूज करिए आप, x3 की वैल्यू को आप 1 -1 3 भी ले सकते हो, ठीक है। और तीनों वेक्टर को li प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, डिटर्मिनेंट चेक कर लोगे, वो नॉन जीरो आना चाहिए। कोई भी वेक्टर ले लो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। फाइन, बट आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे। आप हमेशा x3 को आइडेंटिटी ले लो आप, क्योंकि x3 है ना थर्ड कंपोनेंट, 0 0 1 ले लो आप। फाइन, x3 को मैंने 0 0 1 ले लिया, और इससे चेक करते हैं क्या ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है आपका, x1 x2 और x3। फाइन, इसका डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, 0 - 0 माइनस माइनस +1, 2 - 0 and 0। Clearly say it's a 2 which is non-zero. Yes, they are my li. Fine. जैसे li मिल गए, अब आपके 3 वेक्टर हैं, then you can get as u1, u2 and u3। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू वो तो सिमिलर ही रह गई। सेकंड वैल्यू ये तो सेम अभी हमने प्रीवियस स्टेप में निकाला आपका, दैट इज अ सिमिलर वे, दिस वन। ठीक है, -4/3 -2/3 4/9, वो आपका सेम आ गया आंसर। अब x3 को निकाल देते हैं, 0 0 1, x3 दिस इज माई 0 0 1, इसका डॉट प्रोडक्ट करिए x2 के साथ, तो सिर्फ थर्ड वाला ही आ जाएगा ना, 4/3 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U2, वो भी आपने निकाला हुआ है। नॉर्म ऑफ U2 कितना निकाला अभी, देखिए, नॉर्म ऑफ U2 2 निकाला है, तो स्केयर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आई कैन सब्स्टिट्यूट 4 इंटू U2 4/3 -2/3 4/3 माइनस x3 का U1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करिए, तो सिर्फ 0 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय नॉर्म ऑफ U1 4 + 4 + 1 9। फाइन, आप सोच रहे होंगे कि सर ये चीज तो पहले लिखनी चाहिए, U1, चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पीछे लिखो, एक ही बात है। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर सकते हो इजिली, ये 4 से 4 कट जाएगा, 1/3। अब आप इसकी कैलकुलेशन इजिली, दैट नंबर इज माई 4। फाइन, तो कैलकुलेशन अब ये फोर्थ कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी ना इसकी अब, तो दैट विल बी माई 0। मैं एक पहला कंपोनेंट निकाल दे रहा हूँ, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी माई +4/9। फाइन, एंड सेकेंड इज -2/9। हाँ यस, इससे 2/9, तो फर्स्ट नंबर तो आपका सही है। ठीक है, सिमिलरली यू कैन फाइंड द सेकेंड एंड द थर्ड। क्लियर, अब जैसे ही आपको ऑर्थोगोनल मिल गया, तो ऑर्थोनॉर्मल तो आप निकाल ही सकते हो, डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। तो U1 की लेंथ निकाल दी, U2 U3, you will get these lengths and hence your orthonormal bases are required answer. Okay, look at this another one. Obtain the orthonormal basis for the subspace पूछा आपसे। फाइन, देखिए डिमेंशन ऑफ द R4 कितना होगा, 4, लेकिन यहाँ तो 3 है ना, लेकिन आपसे पूछा किसका, इन्होंने पूछा किसकी, आपको सबस्पेस की पूछी वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए कम चल जाएगा, लेकिन अगर ये आपसे ये कह देते फाइंड द ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ द R4, फिर आपको एक x4 भी बनाना पड़ता अपनी तरफ से, और A4 जिसको आपको, ठीक है।
नाउ तो अब इसमें 3 वेक्टर है, इसको एल चेक करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज इसके डायमेंशन आपके पास क्या है, 4 से कम है ना, तो दे आर एल आई एज वेल। चलिए A1 A2 A3, तो आपका टारगेट है इसमें U1 U2 U3 निकालना, क्लियर। और R4 है, दैट इज अ रियल है, और रियल इज माई xi y, फाइन। तो आई थिंक दैट्स यू कैन डू इट बाय ओन, लाइक व्हाट इज A2 U1, मैं आपको एक निकाल के दिखा दे रहा हूँ। A2 इज माई, फाइन, U1 इज माई दिस, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए कितना आएगा, दिस विल बी 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, दैट इज माई 2, ये 2 हो गया। नॉर्म ऑफ U1 स्केयर, तो हर एलिमेंट का स्केयर कर दो, 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर प्लस 1 स्केयर प्लस 0 स्केयर, that is again my 2. After the calculation, you will get 0, 1, 0, 1. Similarly, you can calculate the U3, you will get these numbers. And after the calculation, you will get minus half, plus half, plus half, minus half. And these are my orthogonals. And once you know the orthogonal, you can convert into the orthonormal by using the norm. Can you calculate the norm of U1? 1 square plus 0 square plus 1 square plus 0 square. Norm of U2 is 0 square plus 1 square plus 0 square plus 1 square. Norm of U3 is 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4, which comes to be 1. So you can divide by each numbers by its length, you will get the norm orthonormal basis. Okay, look at this another one. Can you do this by own? You can see the, what is the inner product? It's minus pi by 2 to plus pi by 2 f into g. फाइन, इस माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2। अब आपके 3 वेक्टर हैं, योर टारगेट इज टू फाइंड U1 U2 एंड U3। मैं आप U1 तो आपको गिवन ही है F1, मैं आपको एक निकाल दे रहा हूं, इसको अलग से निकाल के दे रहा हूं, आपको कितना आएगा, इस माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2, व्हाट इज F2, F इंटू जी ना, दोनों का मल्टीप्लाई है, F2 इज माई साइन एक्स, F1 is my 1. Fine. So integration of the sine is minus of cos x from pi by 2 to minus pi by 2. So answer is 0. ये नंबर आपका 0 हो गया, तो इसकी जरूरत ही नहीं है निकालने की, जब 0 है तो आपका अकेला F2 ही रह गया। That means U2 is nothing but my sin x minus 0 is the sin x. Similarly U3 निकालने के लिए, फाइन, मैं फिर से दो टर्म निकाल दे रहा हूं आपको, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, F3 cos x U2 sin x, फाइन। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं, फाइन, देन इट विल बी माई साइन ऑफ 2x, देन साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 from minus pi by 2 to plus pi by 2. So now you can substitute, 4 is outside, cos pi is my minus 1, minus minus plus, cos of pi is my minus 1. So that will be g. Is it okay? So ये आपका आंसर हो गया आपका 0. Similarly, you can find the F3 and U2 is my 0. F3 and U2 is my 0. And you can find the F3 and U1. U1 आपका कितना है 1. F3 is my cos x, so you can find the integration of the cos x. You will get, ये देखिए ये F3 U2 आपका 0 हो गया, फाइन, और इसकी वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी. Now you can get U1, U2 and U3. Therefore, your orthogonal bases are my 1 sin cos x minus 2 over pi. Okay, that you can do it by own. और लेट मी नो, ओके चलिए फर्स्ट पार्ट करवा दे रहा हूं आपको मैं. वी कैन स्टार्ट विद A1 एंड A2. फाइन, U1 1 minus 1 minus 1. U2 स्टार्ट विद A2 2 1. ओके, इनर प्रोडक्ट क्या है R3
और सब स्पेस का ही पूछा ना, तो डायमेंशन बराबर करने की जरूरत नहीं है। तो x, y का इनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, xi डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज द डॉट प्रोडक्ट, माइनस, ठीक है, तो करिए डॉट प्रोडक्ट u2 a2 का u1 के साथ, दिस इज a2, दिस इज a1, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए तो कितना आएगा, 2 -1 +1, तो ये आपका हो गया 2। नीचे क्या आएगी, लेंथ ऑफ द u1, मतलब इसका स्केयर कर दो, 1 -1 का स्केयर -1 का स्केयर, दैट इज माई 3। अब आप इसको एलिमेंट वाइज ओपन कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर इज 4/5, 5/3 एंड -1/3, and you can easily check that u1 and u2 are my orthogonal, dot product is 0. Once you have proved that they are orthogonal, then आप orthonormal निकाल सकते हो by dividing its length। कितनी आ जाएगी, norm of u1, इसका इंडिविजुअल स्केयर कर दें, 1 + 1 + 1 √3। u2 के लिए इसका स्केयर कर दो, 16/9, 25/9, 1/9, so that will be 41, 42/9, that is for √42 divided by 3, so you can divide it them, you will get the required orthonormal basis. Can you do the second part by on? देखिए हर क्वेश्चन में मैं आपको सेकंड पार्ट एक्सरसाइज दे रहा हूं, यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आर यू एबल टू सॉल्व, नहीं कर पा रहे लेट मी नो, मैं अब नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा आपके लिए बाय द सॉल्यूशन ऑफ these parts are. Okay, now these are exercise for you. Can you solve this by the first and second part? This is a separate question, f1, f2, f3, a and b are there, that is the limits are from -1 to 1, f into g, and you can solve these all questions, you can see they are subspace, सबस्पेस का पूछ रहा ना आपसे, तो सबस्पेस में आपको नया एलिमेंट ऐड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। I hope you really enjoy these lectures, and I will upload the next lecture on the inner product space. Till then, you can share this video, you can like and comment on this. Happy learning always. Best wishes, students. Thanks for the watch.